So good morning everyone. Today we will perform some numericals, okay, for inverse Z transform. Now everybody take your copy and pen and try to solve this one. Okay, the first one is x of z is equal to 5z divided by 2 minus z whole into 3z minus 1. So that you have to find out. Xz is given, you have to find out xn, means inverse z. Okay. So I'm giving you 5 minutes to solve it. If you don't, then I can give you the idea. So as it is the first problem for today's session, so I can give you some idea. Okay. So listen carefully, everyone. Okay. So x of z is equal to 5z by this. Okay. So now the process is that how to solve this one. Basically here you have to perform the inverse z using partial fraction method, and I have described it, partial fraction method. Okay, so before starting with the partial fraction method, you have to follow some steps. Okay, you have to follow some steps. Okay, what are those? No, whenever you are given any expression, that is x of z is equal to 5z by 2 minus z whole into 3z minus 1, anyone, then the first step is that you make it xz upon z. First step is convert it xz into xz upon z. Okay. So you first convert it xz upon z. Why we are doing this? Later we will understand. So xz by z. So what will happen? यहाँ पे देखो 5z by this factor is there. So if you make it xz by z, then right side क्या हो जाएगा? 5 upon 2 minus z whole into 3z minus 1. That you have to perform fast, and that is the first step. So everyone do that one. पहले तुमको ये क्या करना है, xz को xz upon z बनाना है. ओके, सो xz upon z होने से क्या हो जाएगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में xz upon z. सो राइट साइड वुड बी 5 upon 2 minus z whole into 3z minus 1, क्योंकि z इधर आ गया xz by z. After doing that, you have to use partial fraction. Okay, that means xz upon z is equal to 5 by 2 minus z whole into 3z minus 1. इसको तुम क्या लिख सकते हो, 5 upon 2 minus z whole into 3z minus 1 को तुम लिख सकते हो is equal to a by 2 minus j plus b by 3z minus 1. तो उसी से तुमको a and b का वैल्यू निकालनी है. ओके, सो यू फाइंड आउट a and b and tell me. Find out the value of a and b and tell me. Okay. Go fast and solve it. If you have any doubt regarding understanding, तो तुम पूछ सकते हो, बोलो. क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो. सर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा. ओके ओके, आई विल ट्राई.
हाँ देखो तो कुछ इम्प्रूव हुआ है। हाँ मैं ऑडिबल। Yes, sir. So thing is that question is given to you. So many problems are given. The first one is xz is equal to 5z by 2 minus z whole into 3z minus 1. तो ये जो इनवर्स z है इसको तुमको पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। तो कैसे तुम शुरू करोगे, ये स्टार्ट कैसे होगा ये। तो एवरी टाइम द फर्स्ट स्टेप शुड बी xz अपन z बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे z है तो ले आओ इधर xz by z। तो राइट साइड क्या बन गया 5 by दिस फैक्टर। नाउ राइट साइड में जो 5 बाई दिस फैक्टर है इसको तुमको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है सेकंड स्टेप में। तो तुम तो जानते हो, मैंने सिखाया तुम लोगों को। तो 5 बाई 2 माइनस जेड होल इनटू 3z माइनस 1 को तुम इस तरफ लिख सकते हो a अपॉन 2 माइनस जेड प्लस b बाई 3z माइनस 1। तो इतने दूर तक तो आप पहले कर लो। a एंड b का वैल्यू क्या क्या है तुम बोलो मुझको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कैसे मैं पारबोंगी तो मांगा दिए तो मैं जमा बोलो हो रहा है ना प्रॉब्लम, सॉल्व हो रहा है। हेलो सर। बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें क्या करना है? ए और बी का ए और बी ए और बी निकालनी का है। वैल्यू निकालना है। हाँ हाँ देन विल प्रोसीड। पहले वो करो, क्या करना है xz by z इज इक्वल टू 5 by 2 minus z होल इनटू 3z minus 1 को तुम लिख सकते हो a by 2 minus z आ गया सर। by 3z minus a b का सर आ वैल्यू। गया ए बी हाँ का बोलो वैल्यू। a b का कितना कितना आया बोलो। ए 2 आया, बी 1 आया। सभी तो यही है। क्रॉस वेरीफाई इट, सभी को भी यही है। तुम भी ठीक से देखो। xz by z is equal to 5 by 2 minus z whole into 3z minus 1 that equal to written as a by 2 minus z plus b by 3z minus 1। दिस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है इसी में a एंड b निकालनी है। तो a एंड b क्या क्या है बोलो, और किसी को है तुम्हारे पास ये आंसर तो बोल सकते हो। यू कैन वेरीफाई इट। You can verify it. अभी तुम शेयर करो मुझको, इसका होएगा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर तुम हेलो भेजो। सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर, ए का वैल्यू आया 5/2 एंड बी का वैल्यू आया है -5/4। जब जो तुम निकल रही हो ना मेरे को भेजो तो चेक करने दीजिए मेरा ओके सर। व्हाट्सएप नंबर में।
अच्छा, नहीं नहीं, मैं क्या बोला, रॉन्ग हो गया। मैं तो बोला एक्स जेड बाई जेड बनाने के बाद तुम तो 5z लिख दिया, नहीं होगा। ये किसका नंबर है? 571 लास्ट में मैंने बोला ना। भाई एक्स जेड बाई जेड पहले बनाना है तुमको, एक्स जेड बाई जेड देन 5/2 - z होल इंटू 3z - 1। तो जो 5/2 - z होल इंटू 3z - 1 है, दैट इज इक्वल टू a बाय, दैट इज 5/2 - z होल इंटू 3z - 1 इज इक्वल टू लिखना है a/2 - z प्लस b/3z - 1। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हेलो, तो समझ गए ना? तो फर्स्ट एक्स जेड बाई जेड होना चाहिए, उसके बाद 5/2 - z होल इंटू 3z जो है, दैट कैन बी रिटन एज a/2 - z प्लस b/3z - 1। सर मेरा सही है। कौन बोल रहे हो बाबू? ये जो 571 नंबर जो है, लास्ट में तो सर आंसर कितना आएगा फिर? a मैं बाई तो 2 माइनस t नहीं नहीं, प्लस b तुम बाई 3 पहले माइनस। बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम समझ गया कि नहीं? वो 5z तुम लिखो, देखो 5z लिखा है ना तुम, 5z नहीं होगा, जेड तो इधर आ गया, एक्स जेड बाई जेड हो गया, तो 5 इज इक्वल टू होगा 5 इज इक्वल टू a इंटू, ठीक है, 3z - 1 प्लस b इंटू 2 - z होगा, ठीक है। देन कोशिश करो, जेड 5z तो नहीं होगा, जेड 5z के कैसे होगा? क्योंकि एक्स जेड बाई जेड, तुम एक्स जेड बाई सर हम जेड। जेड तो लिखे ही नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे दूर बाबू, क्या बोल रही थी? अरे एक्स जेड बाई जेड पहले बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, एक्स जेड इजिकल टू 5z/2u - z 3z - 1, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। फर्स्ट स्टेप क्या बोला मैंने? एक्स जेड को एक्स जेड बाई जेड बनाना है, तो जब एक्स जेड बाई जेड होगा ये, तो राइट साइड में जेड रहेगा क्या? वो जेड, वो तो एक्स जेड बाई जेड हो गया, तो राइट साइड में क्या है होगा? 5/2 - z होल इंटू 3z - 1 होगा। ये बोलो समझ गया कि नहीं? जो 5z है यहाँ पे, 5 के साथ जो z है वो तो बाएं तरफ आ गया। एक्स जेड इज इक्वल टू 5z बाई जो फैक्टर है, वो एक्सप्रेशन को हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक्स जेड बाई जेड करेंगे, ठीक है। और यू कैन थिंक अबाउट दैट, बोथ साइड को तुम जेड से डिवाइड कर रहे हो, यू कैन थिंक दैट ऑल्सो। और तुम ये भी सोच सकते हो, वो जो आप राइट साइड में जो जेड है, 5z है, वो जेड को तुम लेफ्ट साइड में ले आओ, तो लेफ्ट साइड में जो आएगा वो जेड, तो क्या होगा? एक्स जेड अपॉन जेड हो जाएगा, समझ गया ना? तो एक्स जेड अपॉन जेड होने के बाद राइट साइड में क्या होगा? 5/2 - z होल इंटू 3z - 1 होगा। तो ये राइट साइड में जो ना एक्सप्रेशन तुम्हारा क्या हो गया? एक्स जेड अपॉन जेड दैट इज इक्वल टू 5/2 - z होल इंटू 3z - 1। तो नाउ देखो तुम क्या करो, किए हो यहाँ पे, बाकी तुम्हारा ठीक है। वो 5z जो है, 5z नहीं होगा, 5 इज इक्वल टू होगा, 5 इज इक्वल टू, तुम देखो तुम्हारा कॉपी, मैं तुम्हारा कॉपी तो मैं खुल रहा हूँ। अच्छा दिखाता हूँ, देखो ये वाला ना, देखो ये तुम्हारा क्या होगा? 5z/दिस है, तो 5z तो नहीं होगा ना, ये 5/दिस होगा, तो जेड तो लेफ्ट साइड में चला गया, तो 5/2 - z होल इंटू 3z - 1 दैट इज इक्वल टू a/2 - z प्लस b/3z - 1। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस। ना फाइंड आउट एनपी, अदर अदरवाइज तुम्हारा ये फॉर्मूला, ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस बराबर ठीक है, लेकिन 5z हो गया, इसलिए तुम्हारा वैल्यू भी उल्टा पल्टा आ गया। तो ये दोबारा कोशिश करो, और किसी ने भेजा है?
यस सर, दोबारा कोशिश किए तो बन गया। ए का 1 आया और बी का 3। करेक्ट, ए का 1 बी का 3 होगा। यस सर। वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू होगा 3। तुरंत तो yes, fz by z is equal to 5 by 2 minus z whole into 3z minus 1. Correct. fz by z is equal to this. Then इस तरह 5 is equal to this, इसी से तुम्हारा ठीक है, b का 3 आ गया एंड a का वैल्यू a का वैल्यू 1 आ गया। परफेक्ट है। तो नाउ तुम राइट डाउन करो। नाउ fz by z is equal to क्या हो गया, fz by z is equal to 1 upon 2 minus z प्लस b का वैल्यू 3 है, 3 by 3z minus 1 लिखो। हम दिखाएंगे बाद में, लेकिन तुम कोशिश करो। सो fz अपन z का एक्सप्रेशन क्या आ गया, बिकॉज fz by z is equal to, और fz by z whatever is equal to क्या हो गया तुम्हारा, a b वैल्यू निकल गया। सो fz by z is equal to 1 by 2 minus z plus 3 by 3z minus 1 लिखो। तो मैं भेज रहा हूँ ये पहला वाला तुम्हारा प्रॉब्लम। सर आप क्वेश्चन निकालिए तो अपना। ओके 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 ओके। देखो फर्स्ट पार्ट मैंने भेज दिया, देखो ग्रुप में डाल दिया। देखो मैंने ए का एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। इन दैट वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रोसेस मैंने दिखाया तुमको, पहले तुम ये देखो, उसके बाद एक बी के वैल्यू के साथ क्या होगा हम वो भी दिखाएंगे तुमको। अंकित देखो मैंने, यस सर। हाँ ग्रुप में दे दिया, देखो हाँ सर देख लिए। देख हम लिया ना। देख लिए। हाँ हाँ यस सर। हाँ, और सेकंड पार्ट भी मैं लिख के भेज दिया देखो। फिर फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, इसलिए तुमको मैं पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ। तो किसी को भी डाउट है ए एंड बी निकलने में, तो इसी से तुमको ये मिल जाएगा। ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3। देखो एक्स जेड इक्वल टू दिस है, एक्स जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बाई दिस ए बाई दिस प्लस बी बाई दिस। तो इसी से तुम्हारा 5 इक्वल टू दिस हो जाएगा, ये लोअर वैल्यू काट जाएगा, ऊपर में 5 इक्वल टू ए इंटू दिस बी इंटू दिस हो जाएगा। देन तुमको कंपेयर करना होगा बोथ साइड में, बोथ साइड में कंपेयर करना पड़ेगा। तो जेड को जो कोफिशिएंट होगा वो लिखना होगा बोथ साइड में, और कांस्टेंट भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो इधर जेड का कोफिशिएंट क्या है, देखो यहाँ पे 3a है, यहाँ पे -b है,
इसलिए 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में जेड का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, माइनस a प्लस 2b। सो माइनस a प्लस 2b एंड लेफ्ट साइड में कांस्टेंट कितना है, 5 है। So using these two expression, you have a is equal to 1, b is equal to 3. Up to this, I think everybody got understand. So now we take the second part. Okay, that is most important also. So now the expression, the final expression is looks like xz upon z. ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है तुम्हारा, xz upon z। राइट साइड में क्या मिला, a बाई 2 माइनस जेड, a का वैल्यू 1 है तो 1 बाई 2 माइनस जेड प्लस b बाई 3z माइनस 1, b का वैल्यू 3 था तो 3 बाई 3z माइनस 1। ओके, नाउ जस्ट आई एम रीअरेंजिंग। देखो z को पहले ले लिया, 2 को बाद में लिखा, तो माइनस टेक माइनस कॉमन, सो माइनस 1 बाई जेड माइनस 2 हो गया। और सेकंड दूसरा टर्म जो है, ऊपर में 3 है, नीचे में 3 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा बाबू, वो 3 इंटू जेड माइनस 1/3। ना तुम्हारा एक फॉर्मूला था, है ना, जेड बाय जेड माइनस ए होगा तो ए टू द पावर एन यू एन होगा। उन लोगों के पास ये फॉर्मूला नोन है, जेड बाय जेड माइनस ए, दिमाग में है ना, जेड बाय जेड माइनस ए होगा तो ए टू द पावर एन यू एन होगा। दैट मीन्स 1 बाय 1 माइनस ए जेड इनवर्स, वो भी तुम बोल सकते हो, और जेड बाय जेड माइनस ए भी तुम बोल सकते हो। तो जेड बाय जेड माइनस ए इस तरफ तुमको ये रीअरेंज करना पड़ेगा। तो अप टू दिस क्लियर आई थिंक। नाउ एक्स जेड इक्वल टू बनाना है, एक्स इक्वल जेड राइट साइड में फिर से चला जाएगा। नाउ द थर्ड स्टेप इज यू सेंड आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यू हैव टू सेंड बैक जेड टू द राइट साइड अगेन। नाउ क्या हो गया, -1 जेड बाय जेड माइनस 2 प्लस जेड बाय जेड माइनस 1 था। ठीक है, तो ये जेड बाय जेड माइनस ए, जेड बाय जेड माइनस ए आ गया। सो टेकिंग इनवर्स जेड ऑन बोथ साइड वी गेट एक्सएन, एक्सजेड एक्सएन हो जाएगा। ये -1, ये ए का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 टू द पावर एन यू ऑफ एन, देन ये यहाँ पे क्या होगा, 1/3 होल टू द पावर एन यू एन हो जाएगा। सो दैट इज योर फाइनल expression, that is your final expression। बोलो, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोलो, डाउट हो तो बोलो। पूनम का हो गया क्या? यस सर। समझ गई ना? सर हाँ सर। सर मुझे क्वेश्चन फर्स्ट में डाउट है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन आप दिखा रहे हैं ना आंसर इसका, सर इसका जैसे -1 जेड बाय जेड माइनस 2 का फॉर्मूला, तो इसका तो हम लोग सिर्फ सिंपल लिखेंगे ना, ए का पावर n-1, तो आप -2 कहाँ से लाए? ये देखो ये क्या है, ये जेड है ना, इधर हो जेड को भेज दिया, जेड बाय जेड हाँ माइनस 2 हो गया। वो समझ गए, वहां तक समझ गए। आप यहाँ के बाद मुझे नहीं समझ पड़ा, टेकिंग जो इनवर्स, इनवर्स लिए ना, तो इनवर्स की। फॉर्मूला तुम्हारा है ना, जेड बाय जेड माइनस ए। यस सर। जेड बाय जेड माइनस ए में क्या फॉर्मूला था, ए टू द पावर एन यूएन था ना। हाँ, ए का पावर n-1 होता है, नहीं जो जेड बाय जेड माइनस ए, हाँ सर उसी का बोल रहे हैं हम। तो जेड बाय जेड माइनस ए होता तो फॉर्मूला तो n-1 कहाँ से आ गया? नहीं, मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप जो आंसर लिखे ना, x ऑफ n इक्वल टू -2 का पावर n u ऑफ n प्लस 1/3 n u ऑफ ऑन n, तो आपका जो यहाँ पे -2n कैसे आया वो हम पूछ रहे हैं। जी बाबू, फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ ना, जेड बाय जेड माइनस ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2 है, 2। 2, तो फॉर्मूला क्या है, ए टू द पावर एन, तो 2 टू द पावर एन। हाँ समझ गए ना? हाँ सर। हाँ, हाँ तो 2 टू द पावर एन होगा, तो यूएन तो होता है।
फॉर्मूला था। सर तो माइनस वाला के लिए तो प्लस होता है ना, और प्लस वाला के लिए नहीं माइनस, तो देखो, आप जेड बाय जेड माइनस ए, जेड बाय जेड माइनस ए, ये फॉर्मूला है। जेड बाय जेड प्लस ए हाँ नहीं सर, है। हाँ सर समझ प्लस ए गए वो होता ना, बाहर। प्लस ए होता तो माइनस ए होल टू द पावर एन होता। अब बाहर में माइनस माइनस तो है, यहाँ पे देखो माइनस से हाँ दैट माइनस कम। ये ये सर, वो बाहर वाला माइनस हम ध्यान नहीं देते, अभी हम हाँ, ध्यान दिए। वो फॉर्मूला में नहीं हाँ है। सर समझ गए, हाँ, समझ गया ना। समझ गए सर। हाँ हाँ, इसी में क्या है ना, जस्ट फॉर्मूला है, नथिंग मोर देन ओनली द हाँ सर, सर फॉर्मूला। मैथ में पढ़े नहीं, सर मैथ के टाइम पढ़े नहीं थे ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है अभी। अच्छा, तो ठीक है, दो दो सेकंड जो प्रॉब्लम है, दूसरा जो है, सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है, वो भी तुम देखो, कोशिश करो। ये वाला, 2z² प्लस 3z बाई जेड प्लस 2 होल इंटू z-4। जो जो स्टेप मैंने बोला है, ठीक है, वो स्टेप को हमें जो है, हम नोट्स भेज देंगे, लेकिन तुम पहले कोशिश करो। हम तो हम भेज देंगे सारे के सारे आंसर, ठीक है, पूरा का पूरा जो है ये आंसर हम भेजेंगे। मैं बनाया हूँ, लेकिन पहले तुम कोशिश करो, उसके बाद हम ये आंसर दे देंगे। सेकंड प्रॉब्लम इज 2z² प्लस 3z डिवाइडेड बाय z प्लस 2 होल इंटू z-4। क्योंकि क्लास में तो ज्यादा टाइम नहीं है, पूरा प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम तुमको दे देंगे, घर में तुमको ज्यादा काम। तो सेकंड प्रॉब्लम को कोशिश करो। सेम वही xz बाय z फर्स्ट बनाना है। सर सेकंड में ए आया 1/6 एंड बी आया 11/6। ये आया 1/6 और बी 11/6। करेक्ट, सही है सर। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ओके सर। देन नेक्स्ट प्रोसीड इनका जेड के लिए। ये सबको ही बनाने हैं, एक दो के लिए नहीं है। ओके, देखो ग्रुप में मैं डाल देते हैं ये आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट। तुम बोलो क्या आंसर बता दो। और बाकी सारे जो है तुम लोग नहीं कर रहे, थोड़ा सा। तो बाकी जो सर प्रॉब्लम है, आपको सेंड किया ना, सुन क्या है। सर आपको आंसर सेंड किए, चेक कीजिए ना।
नेटवर्क की थोड़ा डिले। इस तरफ नहीं है 1/6 माइनस 2 होल टू द पावर एनीवेयर प्लस 11/6 4 टू द पावर एनीवेयर, तो नहीं हो रहा है। अच्छा 1/6 माइनस 2 होल टू द पावर n 11/6 4 टू द पावर एनीवेयर। ओके करेक्ट। नहीं देखो एफजेड थोड़ा ये तुम्हारा स्टेप में थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। एफजेड बाई जेड इज इक्वल टू दिस, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में तुमको एफजेड इज इक्वल टू लिखना है, जेड तो उधर लाना पड़ेगा ना, ठीक है यस कि सर, नहीं? जेड को इधर डिवाइड करना भूल गए। सॉरी हाँ ठीक ठीक, बट तुम्हारा सर, तो फिर सही है आंसर ना? करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, लेकिन वो स्टेप में गलत हो गया, बीच में थोड़ा गलत हो गया, वो डायरेक्ट तुम इस तरफ नहीं लिख सकते हैं। वो एफजेड इज इक्वल टू जेड उधर लेके, मैंने बोला ना लास्ट में आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यू हैव टू सेंड बैक जेड टू द राइट साइड अगेन, ठीक है। अदरवाइज हाँ सर, हाँ सर, हाँ अदरवाइज योर आंसर इज करेक्ट। थैंक यू सर। देखो मैं भेज रहा हूँ ये बाकी कहाँ गया। देखो मैंने भेज दिया, थोड़ा हेजी आ गया लेकिन भेज दिया। xz by z is equal to that, so xz is equal to this, taking inverse z we get now, okay. So that way you have to solve the problem. किसी को भी डाउट है regarding these two problems, so you can tell me again because we have 5 minutes more. किसी को भी कोई डाउट है तो बोल सकते हो, क्योंकि बाकी सारे जो प्रॉब्लम है तुमको खुद से करना पड़ेगा। ओके समझ गया ना? हाँ सर बन रहा। तो ये बाकी जो है बनाते रहना है, तो शाम तक में तुम्हारा ये जो नोट्स है सॉल्यूशन का हम भेज देंगे, लेकिन बिफोर दैट यू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था? थर्ड प्रॉब्लम ये है 3z स्क्वायर प्लस 2 बाई 5z माइनस 1 5z प्लस 2। थर्ड प्रॉब्लम सर थर्ड में सर थर्ड में अगर टी हम लोग इधर निकालेंगे इसको, तो वहाँ पे 2 की जगह में 2 है या फिर जेड है ये जो 3z स्क्वायर प्लस 2 +2, तो वहाँ पे 2 बाय जेड इनवर्स हो जाएगा ना वहाँ पे? 2 बाई z हो जाएगा, 2 बाई z हो जाएगा तो सर और 2z इनवर्स जो बोल सकते हो, तो 2z स्क्वायर प्लस 2 बाई z हो जाएगा, सॉरी 3z प्लस 2 बाई z हो जाएगा। 3z स्क्वायर 3z हो जाएगा प्लस 2 बाई z हो जाएगा, z जब इधर आएगा लेफ्ट में आएगा, xz इज इक्वल टू दिस है सपोज, ठीक है ना? सही पकड़ लिया। सर हाँ सर, समझ गए ये। सर 4 वाला में जो है 2z का पावर -1, तो उसमें तो फिर वो तुमको अलग तरीके से करना है, ये तुम्हारा लॉग डिवीजन मेथड। इसमें फिर 1/z करके नहीं लेना लॉन्ग पड़ेगा। डिवीजन डिवीजन करके मैंने देखो तुम्हारा प्रीवियस जो क्लास है मेरा नोट्स और वीडियोस देखो, वहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड है और एक प्रोसेस,
तो पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं होगा 4, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवाइड कर दो। सो डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा तो 4-5 स्टेप तक तुम जाओ, उसके बाद तुमको ये बनाना लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवाइड कर दो 4 वाला। ठीक हाँ, है सर। 4 वाला जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड लिख के रखो, डिवीजन मेथड पर। कॉजल के लिए एंटी कॉजल के लिए, कॉजल के लिए क्या होगा, वो एक्सटेंड 0 से इंफिनिटी तक होगा, और एंटी कॉजल के लिए माइनस इंफिनिटी से 0 तक होगा। ये बात है। अब जेड स्क्वायर प्लस 2z जो है वो तो इजी है। ये फिफ्थ बन जाएगा, फोर्थ में थोड़ा। हाँ, तो फोर्थ इसलिए मैं वो डिफरेंट प्रोसेस दे दिया, वो वो भी तुमको सीखना है। दैट इज कॉल्ड योर लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो डिवाइड कर करके, डिवाइड कर करके, ठीक है। और बाकी सारे जो है 1 2 3 एंड 5 these are for partial fraction मेथड, ठीक है। फोर्थ वाला जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो बोलो। लॉन्ग डिवीजन मींस यू टू डिवाइड, ओके। सो a बाई बी जैसा होता है ना, b से a को डिवाइड कर रहे हो, उसके बाद कुछ रिजल्ट होगा और कुछ रिमाइंडर होगा, परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा तो इसलिए तुमको 4-5-6 स्टेप तक जाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा जो रिजल्ट होगा उसके साथ तुमको सीक्वेंस निकालनी है, इसकी टाइम सीक्वेंस निकालनी है। तो कोशिश करते रहना, नहीं तो हम तो सॉल्व सोल्यूशन तो भेजेंगे। उसके बाद भी तुम्हारा कुछ डाउट होगा तो कल हम फिर से वो डिस्कस करेंगे। कल फिर हम लोग और, ओके सर। हाँ कल फिर हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके सर। और नेक्स्ट वीक से पूरा सिलेबस में हम कुछ 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 करके बनाएंगे, ठीक है। सर 4 ईयर का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाइएगा, उसका नहीं सॉल्व हो रहा, वो थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, तो तुम ध्यान से करोगे तो तुम्हारा मजा आ जाएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, तो हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया। फूरियर सीरीज से भी हम कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे, फूरियर सीरीज से, फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म में। फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास सीरीज, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म, ये तीनों को तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में बहुत हेल्प आ जाएगा। सर्किट थ्योरी मेथड जो है ना, उसी से तुम्हारा लैप्लास का काम आ जाएगा, डीएसपी में जेड ट्रांसफॉर्म काम आ जाएगा। नेक्स्ट सेमिस्टर में तुम्हारा 5th सेमिस्टर में डीएसपी है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो ये तुम सिग्नल सिस्टम अच्छे से पढ़ोगे ना, क्या होगा, डीएसपी तुम